Hi, everyone. So, welcome to a beautiful session of Wall of Inspiration with Rakshita. So, Rakshita is there with us since June 2022, and she is from Bangalore, and she's done Akashic with us, Akashic Records with us. She's done Karmic Tarot with us. She's done Angel Card reading with us. She's done Crystal Ball gazing with us. She's done Graphology level 1, 2, 3 with us. So she is basically a very old student. So, and she is there with us since 2022 June. So, Rakshita, I welcome you to the session and thank you so much for being over here. How are you? Hi, hi to everyone who are watching this. So it's been pleasure to join you on this session. I'm doing great. I guess after a long time, I'm seeing you on video. I mean, direct face to face, and it's been very good. Great. So, Rakshita, can you introduce or share a little about your background before you joined us or before you came into spirituality? What was Rakshita before she entered or she did her first course of into spirituality? So basically, I've been into MNC, I've been working into MNC, but nowhere I could settle down. Nowhere I would love to work there. I'm not the person who can work under anybody, and that was a very big problem for me. And I couldn't settle in any company for 1 year. Hmm. Nowhere. I used to keep changing the companies because I was looking for what settle downs to me then. Then one day I thought, no, these are not part of my work. I need to do something which I'm really good at. When I started figuring out, I literally could understand that I'm really good at guiding people. Since I've been doing this from childhood days, when I inquired with my friends, when I spoke to my best friend, she said, "You're so good at it. Why don't you take up this as your career?" Then I thought life coach is the best way to do. It was in 2020 COVID time when I was researching that I need to start doing. Then luckily, I just got to know your hat through Instagram, Angel Card. So then I thought, let me try this because I was been connecting with angels with 111. So much I've been connecting, and since childhood days, I used to connect with angel. I don't know. I never knew about angels, but I used to know there was some fairy, and I used to connect with that energy. So I thought this is somewhere connecting to me, and I just signed up to your course. There my journey started, and then in Angel Card, when you used to say this is a work where we guide up people, then I thought, why not this? Let me continue rather than going to life coach. I thought even here I'm doing same thing, connecting the people, guiding them, knowing about life, and taking them in a new direction towards a happy life. So I thought, let me take up this. Let me take up this. Then my journey began with you itself. So you then I remember you did angels, then you did tarot, then you did karmic tarot, then Akashic, graphology, vision board, and I don't know what all you did then, right? Yes. Okay, so when you were doing all these courses, what was that one transformative moment during the course that really shook you or that really stood out for you that yeah, this is something that has transformed my life? When I was looking out for my career or building up my financial, I thought I want to be a life coach. But when I entered this journey, I also meanwhile knew that there is one drawback I literally had was my facial hair. I had a rheumatism where it was a very huge facial hair because of which also I was not ready to go to the companies and work because every once in a month I used to get which I was not okay to go with that attire to the offices. I was running from it. When I took angel cards, when I thought, okay, this would help me on my financial, then I thought, obviously, when we get into spirituality, we get to know that we need to heal ourselves. Then I started working on myself. I was looking that one reason why I have a lot of facial hair and how to work on this. I know I've been asking in every courses, ma'am, why it is happening. I want to enhance this, and I've been into it beyond it. Then I didn't find it in Angel. I didn't find exactly in Angel like in Tarot. When you understood me that, like when you taught me that in Karmic and all, you are the number one. You are here to be.
that professionalism में तेरा masculine होना बहुत जरूरी है. That is why you're more into masculine. You built it so much. Then I was not okay because I didn't find the exact reason. But when we went to Akashic, when we started doing Akashic readings, when we were supposed to practice on ourselves, one day I said you that day because when we were in class, I didn't get that day the readings. I went to my home and I've been thinking, oh, I did a practice on that. Next day I got a sleep, and you know that because of my that I Yes. didn't see answers from the angels. I slept, and all of a sudden I got a sleep and I just slept, and I could hear somebody saying download, download, download. And that was the code I could understand. It is coming from Akashic. Some my master is guiding me. And literally they showed me the view that once in my one of my lifetime, I have rejected myself being my feminine energy. And there I was a working woman. So I used to curse. Why am I working? Why am I going to office? Why am I doing being like a man working for all this? And I've been cursing my feminine energy and masculine energy both together, which I carried same in this lifetime. Same, I've been rejecting my feminine energy, and I'm born with a number one where it is fed me to be a Masculine energy. working. You have that potential, which I couldn't understand in my past life, which I'm able to understand now, how much I'm potential and how much I need to build on that. So now, when I started working on both and handling my masculine and feminine energy, when I'm putting my masculine energy into my work and where am I handling my personal life completely in feminine energy, things are working out beautifully. As you only said me, the feminine energy is so visible because before videos or photos, if you see me, lot of masculine energy Lot of was visible, masculine. lot of in my The appearance. first thing when I saw you today, I said, "You're looking so beautiful in sari, right?" Because the feminine energy, I've never seen Rakshita like this. It's always been a masculine Rakshita for me. So now the more you are embracing and you've accepted that, I need to balance my feminine energy also. Things are, I am sure that you must have seen a change in your life also. So is there any Obviously, I got an answer when I went to Akashi. So whenever it comes to me, clients now I'll say, yeah, you need to go to Akashi. What is that? You need to learn, like understand what was that karmic hit. But only go when you're ready to able to take what was happened in the past. Because most of the time people get stuck thinking about past, what happened, and they're not able to move forward. So I think तो my कैन आई से दिस दैट आकाशिक आपको आपकी वो इनर एनर्जी के साथ टैप करवाता है जो कहीं ना कहीं आपका रूट कॉज होता है और वहीं पर हमारी प्रॉब्लम का जड़ पड़ा होता है exactly. Even in the karmic we got to know, right? जब हमने देखा था 3 and 1 कार्मिक की बात. टैरो हाँ कार्मिक टैरो में तो वो सामने आ जाता है कि क्या इशू है व्हाट इज द लेसन सो आई ऑलवेज से दिस दैट आकाशिक जहां खत्म होता है कार्मिक टैरो वहीं से स्टार्ट होता है How to क्योंकि apply it. हाँ एंड आई अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों किया हुआ है आई ऑलवेज से देम कि भैया अगर तुमने कार्मिक टैरो में कुछ देखा है एंड यू अंडरस्टूड कि दिस इज द पैटर्न एक बार क्रॉस चेक करो आकाशिक में उसका कि Hmm. उसका उसकी जो स्टोरी एंड हो रही है क्या वो उसी कॉज पर खत्म हो रही है क्या वो उसी लेसन पर खत्म हो रही है कि ये लेसन इसने सीखा नहीं है तभी तो वो इस लाइफ टाइम में वो लेसन लेकर आएगा ना कि उसको पूरा करना है उसको So this Akashic and Karmic Tarot always go hand in hand. I always tell them. Yes. Okay. इस स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसी कौन सी नॉलेज है जो रक्षिता को पहले नहीं थी और अब हुई है I guess I started understanding who I am. पहले ऐसे होती थी लाइक व्हेन आई स्पीक along with me like जनरली हम सब ऐसे थे यार हम काम कर रहे हैं वी आर अर्निंग वी आर डूइंग समथिंग दैट्स इट लाइफस्टाइल है ये बट वी फॉरगेट हु वी आर लाइक सोल से कनेक्ट करना खुद को इमोशंस को फील करना हु वी आर टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ वाज नॉट रियली आई हैड बिकॉज जब मैं कॉलेज में थी या फिर व्हेन आई वाज वर्किंग ऐसे लाइफस्टाइल था दैट यू आर अर्निंग गो आउटसाइड एंजॉय काम घर पे आ जाओ घर पे एंजॉय करो बस but I never had time for my own self. I couldn't understand what I want. It was always been like, okay, people के साथ रह गई, कर रहे हो ये सब responsibilities, काम कमाना. That's it. I never knew who I am. What is that small things I literally like doing it or not taking time for myself. पहले ऐसा होता था मुझे कहीं बाहर जाना है जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ भागो
But now I take a time, and if it is getting late, I'll say that's okay. But let me feel very relaxed, calm, and then go instead of cursing and going, अरे यार मैं इतनी लेट हो गई ये हो गया but वो पूरा एनवायरनमेंट वहां जाने के बाद काम सब कुछ बिगड़ ही जाता था या फिर I was not in a good energy. But now it's like if something, let me take a time, relax, and then go so that I can enjoy those moments. So I started enjoying small moments. वाह, ग्रेट। लाइफ को देखने का नजरिया कितना बदला आफ्टर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी? I could say shift मेजर completely. शिफ्ट? Completely. As I said, you मेरी हमेशा masculine energy में रहना. I mean, I used to curse that also. Yeah, why? Because you know that I lost Papa in the when I was small. उसके जाने के बाद भी सब कुछ हमें करना. No male member in the house. So small things. Anything we have to take a stand and do things. Many a times I used to curse. कभी कभार कॉलेज में जाने के वक्त भी कुछ काम की वजह से I used to stop going for मतलब 2 दिन छुट्टी लगाना. फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क होती है फिर दोस्तों के घर जाना था पर घर में कुछ काम आ गई थी सो आई शुड ड्रॉप दैट प्लान एंड गो टेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे छोटी छोटी चीजों में आई यूज्ड टू लाइक व्हाट लाइफ इज दिस आई यूज्ड टू कर्स दोस थिंग्स बट नाउ व्हेन आई completely shifted and when I started understand yeah I'm born in मेरी destiny one है I have that power of sun so I have that potential I'm built with the responsibilities and I should accept it तो उसको जितना मैंने समझदारी से नर्चर करने लग गई यार आई एम केपेबल ऑफ इट आई शुड क्या बोलते फील प्राउड अबाउट इट वो कर्स करना ऐसी छोटी छोटी चीज ही खत्म हो गई आई एम लाइक वाह, आई you गो started embracing your responsibility. Great. Wow. This so change took when I saw in my Akashik and जो कार्मिक टैरोट या फिर आकाशिक में मुझे आकाशिक क्यों बहुत कनेक्ट होती है इट्स बिकॉज जो मैंने खुद देखी थी अपनी जर्नी जो हमने विजुअलाइज किया था जो उस लाइफ टाइम में मैंने क्या गलत किया था द वे आई वॉज सो आई कुड लिटरली लीव बैक दोज मोमेंट्स एंड नाउ चेंजिंग वाज सो इजी रादर देन इन कार्मिक डायरेक्ट में तो हम जान लेते काज से बट दैट वाज लाइक लिविंग दैट मोमेंट इन दैट ड्रीम वाज लाइक अभी भी आंखों के सामने वो चलता है एंड दैट ऑलवेज कीप मी रिमाइंडिंग वो गलती मत करो फिर से never curse those responsibilities and never reject your femininity. So उस चीज की वजह से बहुत बदल सो क्या मैं ये बोलूं कि एंजल्स, कार्मिक टैरो, आकाशिक, मोक्ष पाठ या जो भी है, जब जितना आपने करा है, क्या उसके बाद आपकी इंट्यूशन इनहेंस हुई है या उतनी ही है? गई बोल दोगे आई डोंट नो बट एक्चुअल में सुबह जब मैं नहाने की मेरी है ना नहाने के वक्त ही तो सबको यही होता है बिकॉज हमारा मून उस वक्त स्ट्रांग होती है ना तो आई वॉज लाइक आज मुझे रीडिंग करनी थी किस चीज की वजह से चीज ऐसी थी व्हाट इज दैट कार्मिक थिंग क्या करना है क्या है उस चीज के बारे में मैं सोच रही थी एंड एग्जैक्टली आई केम एंड आई सॉ योर दैट मैसेज मैसेज आई गॉट फ्रॉम कार्मिक उसने यार जो मेरे सुबह मुझे इंट्यूशन में मिली थी वही बात यही चल रहा है एंड इट इज सेइंग दैट टुडे मेरे दिन यही करनी है एंड आई बीन सीइंग दिस सुबह उठते ही मुझे छोटी चीज याद आ जाती है आई फील दैट थिंग एंड आई सी एग्जैक्टली उसी चीज उस दिन का इम्पोर्टेंट होता है and that started saying me that okay my intuition is growing based on understand and yes this is also because working on my masculine and feminine energy because I started accepting who I am I started connecting with my soul level and IR energies where my soul started understanding what IR energies is sending me the message इससे मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है अभी Wow. So are you taking clients now for your karmic tarot reading or angels, or it is only till reading, or you're doing mentorship also, teaching? टीचिंग अभी तक मैं टीचिंग नहीं स्टार्ट किया बट बहुत सारे लोग चाह रहे बिकॉज आई एम अ साउथ इंडियन कन्नड़ी का हूँ ना तो लॉट ऑफ पीपल डजंट नो हिंदी the housewives they don't know to connect with English or Hindi who doesn't know they want to connect and also the people हमारी लैंग्वेज में जब बात करते हैं ना that would be more connecting to them so they want me to take up in Kannada I'm Wow. planning but probably I'll be starting in after March के बाद मैं सोच रही हूँ So, okay, now coming back to where you are now reading, approximately last
डेढ़ दो साल में कितना रीडिंग्स कर लिया? इज इट 100 200 और मोर देन दैट? कितने दिन से? 100, कितने कितने क्लाइंट्स को आपने काउंटर किया है, लाइक 100 200, और इज इट मोर रीडिंग्स? मेरी ना ज्यादा ऑनलाइन मैंने कनेक्ट कर, हाँ, मतलब इज इट ओके? इज इट ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं है? मैंने एस्ट्रो टॉक में हूँ। तो अच्छा, यूर विद ऐप, तो आपका ज्यादा ही हाँ, होगा। दिन में ही तो वहां से वहां का भी काउंट कर लूंगी, सो इट्स गोइंग मोर देन 300 400, बिकॉज वहां पर तो इट्स क्लाइंट्स मोर देन आते थ्री रहते हंड्रेड हैं। फोर हंड्रेड देन, या तो या। अगर मैं अपनी पर्सनल की हीलिंग लाइफ टैरोट्स की उसके कनेक्शन से बोलूं, probably now I have a clients of 200 to 300. So you have And 2 300 your personal clients and 2 300 approximately with the app. So 500 600 लोगों के साथ रक्षिता has touched the life. Very good with karmic tarot and angels and everything. Very good, Rakshita. I'm very very proud of you. Yeah. इवन ये मैंने मैनिफेस्टेशन किया था। एक तो मैंने आपसे मैसेज किया था मैम, मैंने मैनिफेस्टेशन किया था दैट आई वांट टू बी वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और मेरी बर्थडे को ही हुआ था करके। और हाँ। उसके बाद से मेरी जर्नी अलग अलग प्लेटफॉर्म से हुआ है, बट आई बीन पार्ट ऑफ मेनी प्लेटफॉर्म्स, सो इट्स बीन गुड। उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन किया था आई वांट टू बी अ सेलिब्रिटी टैरो रीडर, एंड वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड हु इज नाउ वर्किंग इन वन ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री इज वन ऑफ माय क्लाइंट, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क हो गई। एंड तीसरा बात मैंने मैनिफेस्टेशन किया था नॉट ओनली इन इंडिया, आई वांट टू बी कनेक्टिंग विद द पीपल आउटसाइड द इंडिया, जो हमारी इंडियंस भी है। तो वन ऑफ द एनआरआई क्लाइंट इज माय रेगुलर क्लाइंट नाउ, And जो I know कनाडा one में more है। manifestation. You wanted to have a office also. या अभी इसकी रिनोवेशन अभी करने वाली हूँ सून। तो आर मैनिफेस्टेशंस वर्किंग, एंड जो भी पूछते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, because जब मैं इसमें आई थी मैंने आपको बोला था, मेरी मम्मा बोल रही है यार क्या तुम सन्यासी बनना चाह रही हो, व्हाई यू आर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, I बिकॉज remember that phase. लॉट ऑफ पीपल हैव दिस रॉन्ग assumption, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो देन यू आर ना सन्यासी या फिर ऐसे। बट ट्रू फैक्ट इज जब आप इस पे आते हो, रियल लाइफ को You देखते meet हो। your own self. यस वी मीट अवर सेल्फ, जब पार्टी करना हमको पता है कब पार्टी करना है, वी नो टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी नो टू एंजॉय आवर ओन सेल्फ, वी नो टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं बनते, इंडिपेंडेंट बन जाते। सो इट्स लाइक लिविंग अ सोल लाइफ, मतलब सोल पर्पस के साथ हम सोल लाइफ के साथ भी जी रहे हैं। सो एंजॉइंग बोथ टुगेदर इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, आई अंडरस्टूड। एंड मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है ये तो मैंने देखा है। ओके। सो अच्छा, अब मैं ये पूछूंगी कि जो 500 600 लोगों को आपने एनकाउंटर किया है या 600 लोगों की लाइफ टच करी है, जो आपने पढ़ा कार्मिक टैरो में या जो आपने पढ़ा टैरो में, ठीक है, वो थी थ्योरेटिकल नॉलेज। नाउ व्हेन यू गॉट इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, was it the same thing जो हमारी थ्योरी क्लास में है कि हाँ बेटा, ये नंबर ये कार्ड ये कंबाइन करके ये कार्ड, ये होना ही होना है? तो इज इट दैट फॉर्मूला, और डिड यू सी दैट यस, जब हम स्पेशली जब हम कार्मिक पैटर्न्स पर आते हैं, जब हम पैटर्न्स पर आते हैं, जब हम पर्सनालिटी पैटर्न्स पर आते हैं, जब हम कार्मिक लेसन्स पर आते हैं, स्पेशली इन कार्मिक टैरो, डिड यू सी दैट दे हैड द सेम पैटर्न्स, और for you it were the other patterns? तो मोस्ट प्रोबेबली सेम पैटर्न ही कनेक्ट हो रही थी, Same बिकॉज pattern. हम ना नंबर्स के साथ भी कनेक्ट किया था, बिकॉज वी डिडंट टुक ओनली विद द इमेजेस, हमने नंबर्स के हमने साथ साथ नंबर्स की तो वही किया कार्मिक था। टैरो में। हाँ, या so कहीं ना कहीं दैट एवरी नंबर हैज इट्स ओन रोल ऑफ मीनिंग जो हमको सिखाना था। so whenever people come when they have the thing and whenever I take a card कि उनकी कार्मिक लेसन क्या चल रहा है, मतलब क्या correct. सीख रहे हैं। So we usually get that one thing and I always ask them to work on that। उसी एक बात पे वर्क कर लो, do it for 1 month 45 days, बिना कुछ और सोच। After doing they have seen a drastical change। तो क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं? हाँ बहुत आ गई है जब उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। दैट ऑल्सो आई वुड लव टू से, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जस्ट ओनली टू उस वक्त की टेंशन को रिलीज करने के लिए। बट मैं उनको स्पेसिफिकली हमेशा बताती हूँ अगर आप आते हो यहाँ पर और गाइडेंस ले रहे हो पे कर रहे हो, इट ओनली वर्क जब आप खुद वर्क करते हो। आई कैन शो यू अ डायरेक्शन में, आपके हाथ में मैप डाल सकती हूँ और बोल सकती हूँ इस डायरेक्शन पे जाओ, आपको उसी डायरेक्शन पे जाना है आपकी डेस्टिनेशन के लिए, या फिर वहां पर वेट करना है कोई और आएंगे, या फिर
कोई और रास्ता अपनाते हो, अप टू यू। पर हम्म। जिसने जो गाइडेंस को फॉलो किया है, आई वुड से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। एंड दे हैव बीन कमेंटिंग एंड दे कम बैक एंड व्हेन दे से दैट मोमेंट ना, मैम आपने बोला था, मैंने वही किया एंड थिंग्स हैव चेंज्ड, आई बी लाइक यस, दिस इज हाउ लाइफ इज। जो मैंने आपको बोला था ना सुबह में, इसके बारे में ही मुझे इरिटेशन हुए थे, सो दैट वाज लाइक जब हमको कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है ना, खत्म, यू उस प्लेड। क्वेश्चन ही खत्म। पता चाहता है नई क्वेश्चन, नई अध्याय शुरू हो जाता है हमारी लाइफ में ना। तो जैसे उन लोगों ने उसी चीज को वर्क किया, दैट क्वेश्चन हैज एंडेड दम एंड नई चैप्टर ऑफ देयर लाइफ स्टार्टेड। एंड उसको कैसे लेके जाना है, उसके बाद की गाइडेंस जब हम बोलते लेके गए। सो वे कार्मिक वर्क सो स्ट्रांगली कि ऑब्वियसली हम सब यहाँ पर आए तो कोई ना कोई रीजन की वजह से ही आए। तो इफ दैट karmic is nothing but learning some lesson, जैसे मैंने आपसे मीट, दैट वाज समवे यू taught me something, what was the purpose. So everything has its purpose, जब वो जान लेते हैं उस रास्ते पे चली जाते हैं, things work beautifully. तो जब पर्पस की बात कर रहे हो तो क्या आज रक्षिता को अपना लाइफ पर्पस पता है? मेरी लाइफ पर्पस इतना मुझे पता है दैट आई नीड टू गाइड द पीपल इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप मेरे फेसबुक में देखोगे तो मैंने ये डाला है कि मैं कृष्णा बनूंगी और आप लोग मेरे अर्जुन है। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, आप चलते रहोगे, बस। दैट इज माई पर्पस एंड दैट इज व्हाट मैसेज आई रिसीव व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता। वाओ। तो मैंने ग्रेट। तो ये बोलती हूँ जैसे ना, आई गिव यू द रोड मैप, जाना आपकी मर्जी है। आई एम हियर टू ओनली टू द शो द डायरेक्शन, इतना मैं बता मैं सकती मैं यू नो मैं अभी 2022 के उस रक्षिता के बारे में सोच रही हूँ कि ये रक्षिता इतनी बड़ी हो गई है। मतलब 2022 से 2024 एंड में आ गए हम लोग। वी आर ऑलमोस्ट ये आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट होगा, ये पॉडकास्ट या तो जनवरी होगा या फेब्रवरी होगा। सो ऑलमोस्ट इट्स गोना बी 2025 स्टार्टिंग। बट ये वी आर अप्रोचिंग दिसंबर 2024। सो ये रक्षिता पिछले दो 2.25 साल के अंदर इतनी इतनी बड़ी हो गई है। बहुत सारे चेंजेस एज अ मेंटर, एज अ आउटसाइडर मुझे दिख रहे हैं रक्षिता में। बिकॉज सबसे पहला चेंज ऑफकोर्स द बैलेंसिंग द मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, वो आपको आ गया है, वो आर्ट आ गया है। पहले तो आपको वो पता ही नहीं था कि उसको बैलेंस भी करना है। दूसरा, बैलेंसिंग करना आपने बहुत ब्यूटीफुली करा है, बहुत ही ब्यूटीफुली। Responsibility. This is something that, I'm just seeing that you are glowing with, happily taking the responsibility. And you become responsible, more responsible, matured, responsible. थैंक यू। और शांत भी हो गई है। पहले तो क्लास में आते सार रक्षिता यूज्ड टू बी, मैम ये इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। वही तो मैं भी अभी फील करी थी, जिससे मैं ना, मुझे याद है आपकी हर वीडियो पे, हर रिकॉर्डिंग पे देखो कि मेरे दो या तीन तो डाउट्स आती है, मैं पूछती रहती थी मैम ये, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज बीन एनकर्ड विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया ना, कोई भी आंसर्स नहीं पता था मुझे लाइफ में, हर जगह पे ढूंढ रही थी, हर जगह पे आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैड नो होप व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। दैट वाज ओनली होप, घर पे शट करो अपने आप को और जा ऑनलाइन बैठ के काम करो, दैट यू डोंट गो आउट। दैट वाज अ मोमेंट दैट आई डोंट स्टेप आउट बिकॉज ऑफ माय इश्यूज, व्हाट आई सेड, मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से। एंड इवन दैट टाइम इट वाज अ कोविड आल्सो। तो इतनी सारी क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिल रहा था ना, बिकॉज आई हैड दिस फेशियल ईयर, आई कुड से मेरी, जब मैं 7th में थी ये स्टार्ट हो गया था। सो नाउ इट्स 14 to 15 years दैट आई एनकाउंटर। जो 14 years तक की जो क्वेश्चंस दिमाग में चल रहा था ना, व्हाई मी, व्हाई आई गॉट दिस, हाउ टू ओवरकम दिस, हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू डील। पहला ये था कि डील कैसे करना था, एक्सेप्ट करो देन डील विद, वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। बिकॉज हर कोई डील करना सही था, मैंने हर तरह का से मैंने तरीका अपना लिया था, बट नो वेर इट वर्कड आउट फॉर मी। बट व्हेन आई एक्सेप्टेड एंड स्टार्टेड डीलिंग विद दैट, आई गॉट, जैसे ना, ब्यूटीफुल लेसन ये था, जैसे मैं लोगों को बताने लग गई थी, इवन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मैं कहाँ गलत जा रही। स्पिरिचुअलिटी में जब सीखना अलग बात है, और जब आप गाइड करते हो औरों को, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यार ये मेरे साथ भी हुआ था ना, दैट टाइम आई आल्सो मेड सेम मिस्टेक। तो जब औरों को करेक्ट करने के वक्त मुझे पता चल रहा था मैं कहाँ गलत हो गई थी, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पाथ
And now it's like, okay, शांत होके बैठो, पहले सुनो. I got all answers. To be frank, 90% of my life issues got resolved ही बोल सकती हूँ, या फिर answers मिल गई और उसका chapters एक एक बंद हो रहा है. Wow, wow. So, Rakshita, what advice would you give to people who are just, you know, आई वुड से कहीं वो कोई एक रक्षिता बैठी है जो अभी सोच रही है कि क्या मुझे आकाशिक करना चाहिए, क्या मुझे कार्मिक करना चाहिए, करूँ ना करूँ, स्पिरिचुअलिटी में आऊं ना आऊं, मेरी लाइफ के इतने सारे क्वेश्चंस है, वो कोई एक रक्षिता जो आज से 2022 वाली रक्षिता आज कहीं कहीं ये वीडियो देख रही होगी, सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव इट टू हर? See, nothing comes to you as easily. कोई आसानी से नहीं आता है. कोई आपको ढूंढते हुए नहीं आता है. In the career of the people where टू बी फॉर मी इट्स बीन इंस्टाग्राम, जो स्क्रॉल करते रहते बहुत वीडियोस ये सब देख रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन जब एंजल्स के साथ कनेक्ट कर करते आपका वीडियो आया. दैट वाज मेट. मैंने आपसे पहले भी बहुत सारी लाइफ कोच की कोर्सेज को देखा था. आई स्पोक टू 10 to 15 इंस्टीट्यूशंस एंड आई वाज नॉट ओके विद दोस कन्विंसिंग थिंग. बट आपका वीडियो एड ही देखा था और मैं आपकी वेबिनार में आ गई थी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैंने आपको ये स्टोरी बताया था दैट I had only 5,000, like I had only left few amount in my bank account जो मुझे कोर्स में डालना था. एंड योर कोर्स वाज नॉट दैट अप, मतलब उतनी तक मेरे पास उतनी फीस नहीं थी. हम्म। व्हाट हैपेंड? आई जस्ट लिसन टू माय इंट्यूशन, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हर कोई करते हैं यार. इन्वेस्ट करोगे तो सही होगा नहीं होगा. पहला है आपका गोल क्या है जानना है. मेरा गोल यही था दैट आई वांट टू नो, मतलब करियर था मेरी उस वक्त की जर्नी के, उस वक्त में बता दो. I was like, कर लो. मेरी इंट्यूशन आई थी मैं कर लूँ. देन आई ऑलवेज आस्क अ साइंस विद यूनिवर्स. उस वक्त भी मैं वो करती थी, ये जो बचपन से मैंने बोलना है जैसे सोचे मुझे करना है नहीं करना है. मुझे करना है, जैसे मुझे कोई नोटिफिकेशन आए मेरे फोन में, आई वाज लाइक ओके दिस इज अ साइन, आई विल डू इट. मैंने इंडोर किया. मुझे पता था आफ्टर 1 वीक या 15 डेज की पूरा पेमेंट करना था. आई हैड नो अमाउंट और मैं मम्मा से नहीं पूछ सकती थी, मम्मा को ये पसंद नहीं था दैट आई गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी. आई डोंट नो व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू. आई वाज लाइक ओके कर लिया यार, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, इतना सोचूंगी नहीं. यूनिवर्स ने मुझे साइन दिया है. व्हाट इज मेंट विल कम टू मी. दैट टाइम आई ओनली न्यू व्हाट इज मेंट टू मी विल हैपन. इतना मत सोचो. इमीडिएटली 2 या 3 दिन के बाद मुझे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा हीलर काम मिला. ऐसा लिसनर, आई एम नॉट से हीलर, लिसनर से मुझे काम मिला जो उसके कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. यू हैव टू वर्क एज अ लिसनर. आई वाज लाइक यार कुछ मांग रही थी और हो गई. आई जस्ट एनरोल देयर. लाइक 2 दिन में मेरी वर्कर हायरिंग हो गई थी. एंड आई गॉट अमाउंट फ्रॉम देयर एंड आई स्टार्टेड टेकिंग. जो ना आज तक में ना मुझे याद है वो सारी पैसे मैंने लेते ही एनरोल कर दिया आपकी सारी कोर्सेज को. मेरा फर्स्ट शुरू होता है एंजल, देन एडवांस एंजल टैरोट, एंजल टैरोट क्रिस्ट. मेरे आर कोर्सेज के सिर्फ बैक Wargaming, कर Pathology, दिया था. analysis, सब। So whoever is listening to it, see, not everybody are meant to be a spirituality. जैसे ना हर कोई इस दुनिया में आए टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ लॉयर, हर कोई का उनका प्रोफेशनल पता है. नॉट एवरीबडी विल बी कॉल्ड फॉर दिस पर्पस. अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है, कहीं ना आपको लग रहा है मुझे ये करना है, कर लो. नॉट ओनली फॉर द मनी पर्पस, एटलीस्ट टू But for you, अंडरस्टैंड दैट. understand your own self. खुद को समझने के लिए. आई नॉट से सारी कोर्सेस ले लो. ओनली इफ यू कनेक्ट. जैसे मेरी एंजल्स के साथ कनेक्ट हुआ था, आई डिड इट. सो आपको जो कोर्स कनेक्ट होता है, जैसे एक कोर्स लो, कनेक्ट कर लो. वहां पर आपको अगर आगे जाके वो नहीं पढ़ना भी है ना, समवेयर यू विल लर्न अ लेसन टू हाउ टू डील विथ योर लाइफ. इतना तो मैं बता सकती हूँ. हाउ टू हैंडल योर लाइफ एंड डील योर लाइफ, इस स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको पता चल ही जाता है. सो विथ यू इट्स अ साइन. जैसे ना मैंने बताया ना, अगर आई डोंट नो, अगर मेरी किसी और के साथ कनेक्ट होती जो बहुत स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस गए थे, then even I would have been a सन्यासी. आई एम सॉरी जो सुन रहे हैं, बट आपके साथ ये वाइब है दैट यू एंजॉय लाइफ. जो मैंने देखा एंजॉय करती हो. और मुझे आज भी याद है कुलदीप मैम और मेरी और आपकी जो ग्राफोलॉजी में इतनी मजाक कर रहे थे. जो छोटी छोटी लाइंस हिंदी मूवीज की सॉन्ग्स आप बताते हो, मीन वे मेक अस टू लिव अ लाइफ हैप्पीली. तो हमको ये पता चल जाता है दैट एज इट स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस बीइंग इन अ स्पिरिचुअलिटी जो आपने सिखाया है. सो दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू एंड आई वुड से फॉर दैट दे हैव टू गेट विथ यू. अगर जो कह रहे नहीं करना है, सन्यासी नहीं बना है फिर, बिकॉज मेरी ना बहुत सारी टीचर्स है, आई नॉट से रॉन्ग,
मेरी कुछ टीचर्स है जो कंप्लीटली इसके अंदर ही है। तो वो क्या हो जाता है, मैं वहां जाते और मुझे लग जाता है यार मैं कंप्लीटली इसके अंदर घुस रही हूँ क्या। सो इन द मीन टू बी फ्रैंक आई से दैट मैं बार वापस आ जाती हूँ। आपकी कोई वीडियोस, मतलब मेरे पास टैरोट का सारी वीडियोस सेव्ड है मेरी हार्ड डिस्क पे। कोई ना वीडियो लगाती हूँ रोज एंड लर्न। रोज मैं उसी वीडियोस को बार बार सुनती हूँ बिकॉज एवरी डे यू लिसन यू लर्न टू नो सम न्यू थिंग। तो मेरी वो लर्निंग का इंटरेस्ट है ना, तो वो करते तो ओके उससे वो डिपार्ट कर लेता है, ओके नॉट टू गेट लॉस्ट You इनटू you balance, सारी। you get the balance. हाँ Great. हो जाती है। Okay, so in one sentence, how would you sum up learning with Soulzest? आई कैन गेट यू वन I थिंग। said in one sentence, how will you summarize learning with Saiba ma'am or learning with Soulzest? यू आर बीइंग विथ योर ओन कम्युनिटी पीपल, यू आर बीइंग विथ योर ओन सोल ट्राइब, या फिर मैं बोलूँ आप यू आर विथ योर ओन किंडर स्पिरिट्स या फिर स्टार सीड, जो भी बोलना चाहोगे ना, योर सोल ट्राइब। जो एनर्जी होती है, जैसे मुझे एंजॉय करना, मजाक करना, मस्ती करना, साथ में पढ़ना, ये मुझे पसंद है। आई डोंट वांट टू बी वेरी सीरियस बिकॉज मेरी एक ही फंडा है, एक ही लाइफ है, जी लो यार, मस्ती कर लो, साथ में थोड़ा जितना हैंडल करना है रेस्ट में उसको हैंडल करो। सो आपके साथ वो एनर्जी कनेक्ट होती है। सो टू बी फ्रेंक, जो भी आपके साथ कनेक्ट होती है विल हैव दैट सेम एनर्जी ओनली, यार उसको बिल्ड करना हो वो लोग आपके पास आ सकती है। Great. Thank you. So now you are walking on the path of soon you'll be getting into the mentorship. Soon you'll be starting with being a mentor now, being a teacher now. And I would just say this, Rakshita, you have that in you. You have Thank you. always been an inspiration. You have been inspiring people. You have turned out to be so, so, so inspiring that, sometimes when I see you in sari, doing your live videos and live, and I just keep looking at you like this. So it is truly inspiring, and you have touched so many lives, Rakshita. I am so, so, so proud of you. And you are now going to start your own mentorship. I wish you all the best. And आपने अभी 1.5 साल में 600 लोगों को 600 ऑलमोस्ट 600 लोगों को की लाइफ टच करी है। मैं कहती हूँ आने वाले 1 साल में भगवान करे आप जब मेंटरशिप शुरू करो आपको 1,000 2,000 3,000 स्टूडेंट पहली बार में ही मिल जाए। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई नो दैट यू हैव दिस थिंग इन यू एंड यू विल बी डूइंग इट। मतलब वो मुझे कोई सेकंड डाउट ही नहीं है बिकॉज मुझे एक चीज पता है कि आप जब रिसर्च वर्क पे जाते हो तो आप उसकी डेप्थ तक जाते हो, ये मैंने आप में ऑब्जर्व किया है। सो आई नो यू विल बी डूइंग इट वेरी ब्यूटिफुली। थैंक यू। So thank you for being an inspiration for so many people. थैंक यू सो मच। मैंने आपको परसों भी बताया था दैट यू आर माई एंजल करके बिकॉज एंजल्स कैन कम ऑन द अर्थ। यस यू आर अ ह्यूमन एंजल फॉर मी बिकॉज एक पॉडकास्ट करना भी मेरी सपना था, मतलब मेरी ना कुछ बकेट लिस्ट है जो जो मुझे अपनी करियर पे एक एक स्टेप में जाना था। आई स्टिल रिमेम्बर मैंने पॉडकास्ट के बारे में फ्रॉम पास्ट 6 to 7 months में बहुत सारे लोगों से बात करी थी बिकॉज आई हैव नो क्लियर आइडिया किसे करना है, क्या, आई हैव नो आइडिया, बट मुझे करना है यार, वो इच्छा आ रही है बहुत दिन से मुझे, और मुझे कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है ये जैसे मुझे करना है। बट आई हैव नो क्लियर आइडिया हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, स्क्रिप्ट करना है, किस तरह करना है, किस टॉपिक पे करना है, स्टार्ट तो कर लेती हूँ पर फिनिश नहीं कर पाती हूँ, मेरा ड्रॉबैक था पहले Put भी that मेरे। in the manifestation, put that in the universe, and I'm telling you, within 30, 40 days, you are going to see somebody who's going to message you for telling you to interview or telling you to come into the podcast. I'm telling you that. आई बी सो ग्लैड, मुझे करना था बट आई डोंट हैव बीन आस्किंग पीपल, दे वर लाइक ओके हम करेंगे सोचेंगे बताएंगे, बट ना मुझे टाइम मिल रहा था ना उनको टाइम मिल रहा था दैट वी कैच अप एंड प्लान आउट ऑल दिस थिंग्स। सो आई वाज लाइक ओके इस आइडिया को ड्रॉप कर लेती हूँ, 2025 की मेरी टीचिंग का तो स्टार्ट कर लूँ पहले बिकॉज आई हैव स्टार्टेड इट। मैं ये नहीं बताऊंगी नहीं कर रही हूँ बट मैंने लार्ज पीपल या फिर ऐसे नहीं Start किया। taking your manual first. मेरी नोन Start taking your पर्सन थी, manual. Notes उन्होंने बना बताया था दैट टीच मी करके, तो उनके लिए छोटी छोटी ऐसे स्टार्ट किया है, छोटी छोटी चीजें उनको गाइड कर रही हूँ। सो इन दैट पार्ट आई वाज लाइक ओके इसको है ना थोड़ा ओल्ड पे रख लेती बिकॉज नथिंग इज वर्किंग ऑन, एंड देन यू सडनली मैसेज मी, वाज लाइक ओके आई एम डन।
एंड उसी दिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, मुझे आर्किंजल माइकल से मिला था दैट यही। यू आर इन द राइट पाथ एंड गो फॉर इट, एंड आई वाज लाइक मैम मैं कर रही हूँ ये पॉडकास्ट आपके साथ, सो इट वाज लाइक ओके. Thank So you. Thank you you so keep much, maybe Rakshit. guiding me since my journey wanted to come into spirituality. You are the one who took me into this direction, and that also got connected with Angel. And whenever I want something, I get your thing. And even मेरी जो आपने मुझे ऑफिस शुरू होते मुझे जो बुद्धा दिया था पेंटिंग, आज भी मेरी एंट्रेंस में है. इट्स ओनली बिकॉज आई गेट ब्लेसिंग्स ऑलवेज, एंड यू ब्लेस मी दैट आई वेलकम अ राइट पर्सन राइट एनर्जी. वो होता है ना, आपको एक एक गुरु से ब्लेसिंग्स हमेशा लेना है. इवन दो आई डोंट कनेक्ट विथ यू डायरेक्टली एवरी डे, बट वहां पर एक होता है कि यार उनकी द्वारा ही मुझे मिला है, सो दैट समवेयर आई हैव दैट गुरु ब्लेसिंग. सो नेवर एवर मेरी ये जो काम करी हो कभी खत्म ना हो जाए. इट ऑलवेज कीप ग्रोइंग. हमेशा आई 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 रियली प्रे कि आप क्या, मैं कहती हूँ आपको जितना सोच रहे हो ना उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा रक्षिता, एंड आई नो दैट यू कैन डू दैट. थैंक यू. So thank you so much, Rakshita, for being here, for sharing your knowledge with us, and for being an inspiration for so many people who are going to be watching this. So thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी. Thank you. Take care. God bless you.